Good morning, विद्यार्थी मित्रों. Good morning, dear student. BCom semester 5 English medium. Dear student, in our previous lectures, we can count example number 14, and in today lecture, uh, we count example number 15. Is also same method, purchase and merger. Dear students, uh, I humbly request to you, please uh, do practice at home which example count by me in amalgamations and marginal costing and etc which is our unit complete. Dear student, now I read the information related to our example. The balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2012 are as under. Liabilities A Limited and B Limited. Equity share capital of rupees 10 each fully paid up 16 lakh and 6 lakhs. 12% preference shares of rupees 10 2 lakhs. General reserve 9 lakh 22,000 1 lakh 96,000. Investment rebate reserve 78,000 25,000. Profit and loss account 1 lakh 12,600 and 71,000. 12% debentures 15,000. Creditors 2 lakhs 1 lakh 40,000. Bills payable 86,400 58,000. Total 30 lakhs and 13 lakhs 40,000. Assets, so fixed assets 22 lakhs and 9 lakhs 46,000. Stock 5 lakhs 1 lakhs 94,000. Debtors 2 lakh 50,000 1 lakh 20,000. Cash and bank 50,000 and 80,000. Total 30 lakhs and 30 lakhs 40,000. Now additional information. A Limited has decided to absorb the business of B Limited on 1st April 2012 with following condition. 1. The equity shareholder of B Limited will be given fully paid up 70,000 equity share of A Limited of rupees 10 each. Second, the preference holders of B Limited will be given 12 percentage 2,200 preference shares of A Limited. Number 3, the debenture holders of B Limited will be given 15% new debenture of A Limited so that the company can receive the same interest as per last year. Number 4, investment rebate reserve is to be kept for another 2 years. Prepare balance sheet after amalgamations. A. Amalgamation is in the nature of merger and B. Amalgamation is in the nature of purchase. So friends, we start our example when the amalgamation is in the nature of merger. Okay, so first we find out new share capital. Friends, our purchase considerations to B Limited because A take over B मीन्स A है वो B को परचेज कर रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो B लिमिटेड है उसकी न्यू जो शेयर कैपिटल है यानी कि हम उसको परचेज के दौर पे जो दे रहे हैं शेयर्स उसका टोटल हमें यहाँ पे करना है. उसके बाद उसमें से हमें जो पुरानी उसकी शेयर कैपिटल्स है उसको डिडक्ट करना है और जो डिफरेंट आएगा उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट में. तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम इसको 70,000 शेयर्स दे रहे हैं और 10 रुपीज, तो 70,000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 7 लैक्स. उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर उसको दे रहे हैं कितने परसेंट, 12% के. हमारे यहाँ पे भी 12% है. ओके, तो 12% के हम प्रेफरेंस शेयर उसको दे रहे हैं कितने, 2200. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2200 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2,20,000. हमारी नई जो शेयर कैपिटल उसका टोटल हो गया 9,20,000. अब उसमें से हम क्या करेंगे, जो पुरानी हमारी जो शेयर कैपिटल है उसको हम डिडक्ट कर देते, तो माइनस ओल्ड शेयर कैपिटल बी लिमिटेड. तो यहाँ पे चलते हैं उस पे, यहाँ पे उसकी शेयर कैपिटल कितनी है 6 लैक्स और पर शेयर कितना है 10 यानी कि 60,000. तो शेयर कैपिटल 6 लैक्स प्लस प्रेफरेंस शेयर उसका कितना है 2 लैक्स, तो 2 लैक्स टोटल 8 लैक्स. 9,20,000 माइनस 8 लैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपीज. तो ये बात हो गई किसकी, हमारे बी लिमिटेड की. ओके, अब उसका थर्ड पॉइंट था कि हमें उसके डिबेंचर इतने परसेंट के देने ताकि
उसका ब्याज का कोई जो इंटरेस्ट है उसका कोई लॉस ना हो। तो सबसे पहले हम अपने पुराने जो डिबेंचर्स है उस पे हम उसको यहाँ पे उसका वो जो होता है इंटरेस्ट वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो बी लिमिटेड का तो डिबेंचर 50,000 थे और 12% यानी कि 6,000 रुपीज। अब न्यू हमें जो देना है डिबेंचर्स, तो वो 50% कितने हमें देने हैं। तो 50 रुपीज अगर हम उनको इंटरेस्ट दे दे तो हमारी कैपिटल की 100। तो जब 6,000 हमारा इंटरेस्ट हो तो कितना, तो 40,000 रुपीज। यानी कि हम उसको 15% के 40,000 रुपीज के हम डिबेंचर इसको इश्यू करेंगे। अब हमें बेनिफिट कितना हुआ, क्योंकि पहले हमारे डिबेंचर्स कितने थे 50,000, अब कितने हो गए 40,000। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे कितने पैसे बच गए यहाँ पे सेव हो गए। तो हमें वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ओल्ड डिबेंचर कितने थे 50,000, उसमें से माइनस न्यू डिबेंचर्स हमने कितने के दिए 40,000। तो हमें कितना बेनिफिट हुआ 10,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ। तो ये सब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। जब भी आपको ऐसा कोई भी डिबेंचर्स का आपको कोई भी एडजस्टमेंट दिया हो या पर्टिकुलर हो, तो उसको अगर न्यू डिबेंचर फाइंड आउट करने हैं तो उसमें ओल्ड में से न्यू डिबेंचर्स हमें क्या करना है यहाँ पे बात कर देना है। अगर सपोज समझ लो कि हमारे न्यू डिबेंचर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई पुराने से, तो यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस लिख देना है हमें और कुछ नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट के तौर और। तो बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशन, सबसे पहले शेयर कैपिटल तो ए प्लस बी तो 23 लैक्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ यहाँ पे ही है, हमने इसको दिया था 2,20,000। यहाँ पे देख लीजिए हमने नए दिए 2,20,000, तो 2,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे हम 9,22,000 प्लस 1,96,000 यानी कि 11,80,000 माइनस डिफरेंस कौन सा, तो ये डिफरेंस हम 1,20,000 उसमें क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे। तो माइनस डिफरेंस 1,20,000 यानी कि अब हमारे पास कितना जनरल रिजर्व रहा 9,80,000। अब उसमें हम क्या प्लस करेंगे प्रॉफिट कौन सा, तो ये हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो 10,000 यानी कि अब हमारे पास जनरल रिजर्व कितना हो गया 10,08,000 रुपीज। फिर से एक बार समझ लेते हैं इस पॉइंट को। जब भी आप अमलगेशन मजर टाइप का करेंगे तो जनरल रिजर्व दोनों का यहाँ पे टोटल कर देना है। उसमें से सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट जनरल रिजर्व किया है वो हमें क्या कर देना है डिडक्ट कर देना है, बात कर देना है उसकी जितने भी अमाउंट वो बात कर देनी है। बात करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट आउटसाइड लिख देना है। अगर प्रॉफिट या लॉस है, अगर लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट प्लस कर दिया 10,000 यानी कि हमारा जो जनरल रिजर्व हो गया 10,08,000 रुपीज। अब इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व तो दोनों का टोटल 1,03,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दोनों का टोटल 1,83,600। 12% डिबेंचर तो 40,000। क्रेडिटर्स तो दोनों का टोटल 3,40,000। बिल्स पेबल दोनों का टोटल 1,45,400। ओके, अब चलते हैं हम एसेट्स पे। तो एसेट्स पे भी इन दोनों का टोटल करके डायरेक्ट लिख दें 31,46,000। स्टॉक दोनों का टोटल 6,94,000। डेटर्स दोनों का टोटल 3,07,000 और कैश और बैंक दोनों का टोटल दोनों बोथ साइड 43,40,000। बहुत ही सिंपल है ये एग्जांपल फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है हमें, जो बी लिमिटेड है उसकी जो शेयर कैपिटल है वो वहां पे यहाँ पे हमें न्यू लेनी है और बाकी की सब जो है वो एज अ बुक वैल्यू हमें ले लेनी है। ओके, अब चलते हम दूसरे पर अपने मेथड पे। परचेज जब हमारा व्हेन द अमलगेशन इज द नेचर ऑफ परचेज, जब हमारा परचेज दो तो सबसे पहले हमें क्या करना है उसकी परचेज प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो परचेज प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 9,20,000। तो वही अब बिक की रहेगी परचेज प्राइस 9,20,000। अब ओके, अब हमारे हमारे हमें परचेज प्राइस मिल गई 9,20,000। अब उसके बाद स्टेप टू क्या करना है, जब परचेज हो तो हमें नेट एसेट्स फाइंड आउट करना है। तो नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो भी यहाँ पे डिटेल है बी लिमिटेड की वो हम यहाँ पे एसेट्स पे लिख देंगे। उसके बाद जो भी हमारे लायबिलिटीज है उसको हम डिडक्ट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम आगे लिखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स दो नेट एसेट्स। तो हम सबसे पहले नेट एसेट्स, तो सभी एसेट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं
30,40,000, तो ये कोई भी फिक्टिस एसेट्स नहीं है, यानी कि काल्पनिक कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेंस के ऐसी एसेट नहीं है कि जो इसमें इंक्लूड ना हो, यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दिया नेट एसेट्स 30,40,000, उसमें से लेस लायबिलिटीज। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लायबिलिटीज कौन सी है, तो डिबेंचर से, क्रेडिटर से और बिल्स पेबल है। अब यहाँ पे डिबेंचर्स हमें कौन से लेने हैं, पुराने वाले लेने हैं। ओके, पुराने वाले लेने डिबेंचर्स, तो पुराने वाले लेंगे हम 50,000। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स थे 1,40,000 और बिल्स पेबल था हमारा 58,000। टोटल हो गया 2,48,000। ओके, तो अब हमारा जो नेट एसेट्स आएगा वो कितना आएगा, 10,92,000 रुपीज हमारा नेट एसेट्स जो है वो हो गया। ओके, अब उसके बाद कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व जो है हमारा वो हमें क्या करना है, तो कैपिटल रिजर्व हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना। अब समझ लो कि अगर आप यहाँ पे पुराने लोगे 40,000 तो भी ले सकते हो, तो आपको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व 1,82,000 मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके बुक में जिस तरह से उसी तरह किया है ताकि आपको कुछ गलती ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पुराने ही लिए डिबेंचर। अगर आप चाहे तो यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू 40,000 भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आपका आंसर इतना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है नेट एसेट कितना आ गया, 10,92,000। अब नेट एसेट्स 10,92,000 है और हमारी परचेज प्राइस जो है वो 9,20,000 है। मींस कि यहाँ पे हमारा जो नेट एसेट्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है परचेज प्राइस से, तो जो डिफरेंट होगा उसे कहेंगे हम कैपिटल रिजर्व। तो हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख देते, तो नेट एसेट्स माइनस परचेज प्राइस, तो 10,92,000 माइनस 9,20,000 इज इक्वल टू 1,72,000 रुपीज। और उसके बाद हम जो हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे डिबेंचर्स का, वो हमारे कैपिटल रिजर्व में हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू 1,72,000 प्लस 10,000 डिबेंचर प्रॉफिट, यानी कि 1,82,000 रुपीज। ओके, दोनों का एक टोटल हो गया 1,82,000 रुपीज। अब चाहो तो यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू लिख सकते हो, तो न्यू वैल्यू लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका कैपिटल रिजर्व 1,82,000 रुपीज आ जाएगा। चाहे तो आप घर पे एक बार उसको प्लस माइनस करके आप देख लेना। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे, बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशन। अब यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व इज टू बी केप्ट फॉर अनदर 2 इयर्स। तो इसका आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे एसेट्स पे जो भी लिख दिया है वो सिर्फ कैश के सिवाय, कैश के अलावा आपको यहाँ पे पूरी सारी एसेट्स लिख देनी है। सॉरी, यहाँ पे आपको पूरी एसेट्स लिख देनी है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वो होगा हमारा अमलगेशन पे जाएगा, सॉरी। तो पूरी एसेट्स जो भी यहाँ पे आपने लिखा है वो कॉपी टू पेस्ट यहाँ पे कर देना है पहले एसेट्स में। ओके, उसके बाद अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें जो भी जो जिसमें कोई चेंज नहीं वो कॉपी पेस्ट करना है। सपोज के शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, ओके, डिबेंचर से, क्रेडिटर से, बिल्स पेबल है, ये जो भी हमारे जो लायबिलिटीज है वो तो हमें यहाँ पे कॉपी टू पेस्ट कर देना है। जो चेंज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारी इक्विटी कैपिटल 23 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड 2,20,000। अब जनरल रिजर्व जो होगा वो सिर्फ हमारा किसका आएगा, ए का ही आएगा, बी का आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो इसीलिए, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने अगले एग्जांपल में भी देखा था, और इस एग्जांपल में आपको कहा गया हो या ना कहा गया हो, लेकिन जब भी आप परचेस टाइप का अमलगेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आप याद रखना कि आपको यहाँ पे जितने भी फंड्स है रिजर्व्स, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे फंड्स जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो आपको यहाँ पे बिल लिमिटेड के लेने नहीं है। आप देख लीजिए, हम आगे पे एग्जांपल जब कैलकुलेट करते थे तो वहां पे हम रिजर्व्स नहीं लेते थे, क्या लेते थे, शेयर कैपिटल और डायरेक्ट दोनों के लायबिलिटीज लेते थे। यहाँ पे हम ए प्लस बी कर रहे हैं क्योंकि ए का तो पूरा आएगा, ए का तो जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पे उसमें। अब जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो यहाँ पे बी के आपको लेने नहीं है, तो जनरल रिजर्व जो है वो नहीं आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलते हम यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो 2,20,000, जनरल रिजर्व तो 9,22,000, क्रेडिटर्स 3,40,000, बिल्स पेबल
1,43,400 सॉरी 45,400 15% डिबेंचर 40,000 इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व दोनों का टोटल यहाँ पे हमें बोला कैप हमें उसको कंटिन्यू करना है इसीलिए बोला है इसीलिए हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे कैप फॉर 200 मीन्स इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व यानी कि ब्याज जो हमारा रोकाण होता है उस पे जो भी हमारा रिटर्न होता है अगर उसमें प्लस माइनस हो तो उसको हम सरप्लस कर सके इसलिए हम इसका एक ऐसा रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो हमें अभी 2 साल के लिए इसको कंटिन्यू करना है इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है दोनों का टोटल 1,03,000 उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ओनली ए आएगा क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो ओनली ए आपको यहाँ पे समझा दूं कि जब भी आप परचेज टाइप का बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं कर सिर्फ दो ही चीज याद रखनी वन कि आपको जनरल रिजर्व है तो उसमें जो भी सेकेंडरी कंपनी है उसका लेना नहीं है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको लेना नहीं है बाकी का सब जो है वो सेम एज इट इज रहेगा और कैपिटल रिजर्व 1,82,000 टोटल 43,65,000 यहाँ पे डिफरेंस आएगा 25,000 तो वो होगा अमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट तो वो कौन सा आ गया यहाँ पे हमारा यही इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व जो है वही हमारा यहाँ पे इसका हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया घर पे एक बार फिर से आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना ताकि आपको समझ में आ जाए ओके घर पे रहे सलामत रहे जय हिंद